Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Purnima. I'm a nights and PT trainer, and today's video is going to be very interesting because recently I got a comment from one of my viewer related to dependent visa interview questions. So I decided to make this video. So if you are going to attend any interview and you have already applied or you got your visa and now you are preparing for interview, then this video is for you. Don't skip the video because as you know that interview is the most crucial part of your ambition to go abroad, because you have to clear your interview at any cost. So as you know that preparation is mandatory for every task, so you should well ready for your interview as well. So first and before starting the video, I want to say that take a notebook and pen with you and note down all the questions that I'm going to discuss with you. And one more thing is that I will not tell you about the exact answer. You should modify your answer according to you, because you know your situation much better than me, but I can only take you to the hint that you can use to give your answers. Okay, so without wasting the time, let's start the video. First of all, the interview may ask you questions about yourself only, your personal introductory questions you can say. So first question they can ask you is that what are your plans for when you are coming to the USA, UK, Australia, Canada, whatever country you are going to, and what do you wish to do? Now in this question इंटरव्यू आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, सो वहाँ पर आप करना क्या चाहते हैं. मीन्स यू आर गोइंग देयर फॉर योर स्टडी, फॉर योर बिजनेस, फॉर वर्क एक्सेट्रा. So you have to give them clear-cut answer that I'm going there to complete my post-graduation, graduation, work, etc. Whatever your case is. Okay. Next question they can ask you is, are you planning on working in the USA, Canada or Australia? Means will you do part-time or full-time job there? So in this question you have to give them clear-cut answer that no, I'm not really into doing any part-time or full-time job there, because my primary motto to go there is to just complete my study. And I don't really need to do part-time or full-time job because I have already submitted my fees, and rest of the fees I will manage according to my financial situation, because my family is sponsoring me, my father is sponsoring me, my husband is sponsoring me, whatever the case. क्लियर. आपने उन्हें ये कभी नहीं कहना कि हाँ भाई मैं वहाँ तो पार्ट टाइम जॉब करूंगा, फुल टाइम जॉब करूंगा. नो, क्योंकि इससे उसको लगेगा कि यू आर गोइंग देयर टू जस्ट गेट मनी एंड टू डू वर्क, नॉट ओनली फॉर योर स्टडी. सो आपने उनको क्लियर कंटेंट से बोल देना है कि नहीं, मेरा जो प्राइमरी मोटिव है वहाँ जाने का वो सिर्फ ये है कि मैं अपना फुल टाइम और पार्ट टाइम स्टडी करूंगा या करूंगी, एंड आफ्टर दैट आई विल डेफिनेटली कम टू माई होम कंट्री. और मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली एज वेल एज फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फंडिंग की. सो दैट्स वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब देयर. Next question they can ask you, do you have any relative in UK, Australia or Canada? So you will definitely say that. If you are going to say that yes, my brother lives in Canada, Australia, UK, my uncle lives in there, then they will ask you so many questions related to this. So I recommend you give them a clear cut answer that no, I have no relative in UK or none of my relative lives in that particular country. I am the first member in my family who is going there. क्लियर. आपने उनको ये कभी नहीं कहना कि हमारा रिलेटिव रहता, बिकॉज वो आपके रिलेटिव का फिर टेलीफोन नंबर, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस, काफ़ी डिटेल पूछेंगे आपसे. सो इसलिए आप उनको सीधा क्लियर कट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंटरव्यू को सिंपल बनाओगे उतना ज़्यादा आपका इंटरव्यू अच्छा होगा. सो आपने सिंपल बोलना है, नहीं मेरा वहाँ पर कोई रिलेटिव नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड ही अपनी फैमिली में ऐसे जो वहाँ पर जा रहे हैं, हम पहले मेम्बर्स हैं. ठीक है, इससे आपको कुछ भी आगे आंसर देने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर. Next question they can ask you, what's the address where you are currently staying? So in this you have to give them the brief of your address. For example, your living place. I'm living in this area and which comes under district, ये वो जो भी आपने बोला, आप उनको अपने लिविंग प्लेस के बारे में, अपने होम टाउन के बारे में उनको बताना है कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, इतने टाइम से रह रहा हूँ, मैं बिलोंग जो है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, अपने जो आपका मायका है उस साइड से, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी अपनी शादी के बाद मैं यहाँ पर 5 साल से इसी जगह पर रह रही हूँ. ठीक है, इफ यू आर अ लेडी.
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू हु आर यू करेंटली स्टेइंग विद, कि अभी आप किसके साथ रह रहे हैं. मीन्स यू इफ यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली, विद योर हस्बैंड, विद योर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, देन यू हैव टू से दैट आई एम लिविंग इन जॉइंट फैमिली विद माई फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल, आंट, एक्सेट्रा. Clear. Next question they can ask you where do you plan on staying in the UK, United States और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व्हेन यू गेट योर वीज़ा. मीन्स अब वो आपसे पूछ रहे कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, जैसे एन एग्जांपल, तो आप वहाँ पर कहाँ पर रहेंगे. सो यू हैव टू से दैट इन द इनिशियल डेज आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द होटल. सो मैं उस होटल में रहूंगी कुछ दिन अनटिल और अनलेस आई गेट सुटेबल एकोमोडेशन फॉर मी. ठीक है, कि जब तक हमें एक सुटेबल एकोमोडेशन नहीं मिल जाता उससे पहले हम जो है 1 वीक 14 डेज हम क्वारंटाइन करेंगे एंड उसके बाद फिर हम होटल में स्टे करेंगे जब तक हमें एक परफेक्ट अपने लिए एकोमोडेशन नहीं मिल जाता. ठीक है, एंड उसके लिए वी हैव ऑलरेडी सर्च्ड ऑनलाइन टूल्स एंड द रेंट ऑफ द रूम इज जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो आपने उनको ये बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू while in the United States who is responsible for financially supporting you. Now in this question they wanna know that if you are living in Canada, Australia or UK then who will financial support you, कि आपको financial support कौन करेगा. ठीक है, तो आपने इसमें सिंपल बोलना है कि एज माई फादर इन लॉ स्पॉन्सरिंग और माई फैमिली स्पॉन्सरिंग माई ट्रिप, सो दे विल डेफिनेटली स्पॉन्सर मी एंड आई हैव अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 lakh, 6 lakh, 7 lakh एक्सेट्रा इन माई अकाउंट. सो आई हैव नो मनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू हु इज गोइंग टू पे फॉर योर ट्रिप एज यू आर गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि आप यूनाइटेड स्टेट जा रहे हैं तो आपकी स्टडी के लिए, और अगर वहाँ पर आप टूरिस्ट बेस पे जा रहे हैं तो उसके लिए पे कौन करेगा. तो उसमें भी आपने सिंपल बोलना है यू आर गोइंग टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्पॉन्सर, कि मेरा स्पॉन्सर ये है, वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतना पैसा उन्होंने दे दिया, इतना मेरे पास है, मैं इतना कैश लेकर जाऊंगी एक्सेट्रा. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू ओनली यू, वो आपसे पहले पूछेंगे. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट योर मैरिज, कि मैरिज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू कैन यू शो अस अ मैरिज सर्टिफिकेट. सो वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, स्पाउस इंटरव्यू, देन यू हैव टू टेक योर मैरिज सर्टिफिकेट. यू हैव टू कलेक्ट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट. ठीक है, बिना डॉक्यूमेंट के अगर आप जाएंगे तो वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है. सो यू शुड फुली प्रिपेयर्ड. ठीक है, कैन यू शो अस अ मैरिज सर्टिफिकेट, कि क्या आप हमें एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं. सो उसमें क्या बोलना है आपको, येस एंड शो देम द मैरिज सर्टिफिकेट. सो आपने सीधा बोला ऑफ कोर्स यू कैन सी आवर मैरिज सर्टिफिकेट एंड हियर इट इज. तो आप उनको मैरिज सर्टिफिकेट शो कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू कैन यू शोज योर वेडिंग एल्बम. सो वो आपकी वेडिंग एल्बम भी देख सकते हैं कि आपकी मैरिज जेन्युइन है, फेक नहीं है, कॉन्टेक्ट बेस्ड नहीं है. सो आपको उनको अपनी वेडिंग एल्बम भी शो करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू शो द वेडिंग इनविटेशन कार्ड. आपको 1-2 कार्ड जो हैं जो आपकी शादी के टाइम थे प्रिंट हुए थे, तो वो कार्ड भी, उनमें से एक कार्ड आपको, 2 कार्ड ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाओ, उनको वहां पर शो करना है कि यस ये हमारा जो है वेडिंग इनविटेशन कार्ड है. यू कैन simply see this. Next question they can ask you how long has it been since you got married, means they wanna know the time of your marriage, कि आपकी शादी को कितने साल हो गए. So you can say I have been married since 2 years or for the last 2 years, since 1 month etc. ठीक है, that's you know better. नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू ऑन व्हाट डेट डिड यू टू गेट मैरिड, की कब हुई आपकी शादी. यू हैव टू रिमेंबर द डेट ऑफ योर मैरिज एंड यू हैव पर्टिकुलर रिमेंबर द फेवरेट कलर, फूड एंड द योर मदर इन लॉ नेम, फादर इन लॉ नेम, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऑल द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर यू शुड रिमेंबर. ठीक है, आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को एक दूसरे के परिवार के सभी मेंबर्स के नाम पता होने चाहिए, स्पेशली लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सभी के, क्योंकि वो पूछते ही हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपको अपने स्पाउस की हर एक चीज, उनकी फेवरेट बुक, फेवरेट कलर, फेवरेट प्लेस, फेवरेट फूड, उनकी हर एक फेवरेट चीज के बारे में पता होना चाहिए. सिमिलरली उनको भी आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज वहां पर आपको कंप्लीट अपना मैरिज रियल शो करना ही है. ठीक है,
सो आपको एक दूसरे के इंटरेस्ट, हॉबीज सब कुछ पता होने चाहिए, ठीक है। पहली बार आप कहाँ पर मिले थे, दे कैन आस्क यू फर्स्ट टाइम वेयर यू मेट, कि आप पहली बार कहाँ पर मिले थे, तो आप उन्हें बताना है कि हम यहाँ पर मिले थे। इफ इट्स अ लव मैरिज देन यू कैन से कि हम कॉलेज में मिले थे, स्कूल में मिले थे। और अगर अरेंज है देन यू कैन से वी मेट थ्रू अ फैमिली मेम्बर और थ्रू माई नेबर, पड़ोसी, जैसे जो हमारा मतलब बोलते हैं ना कि जो रिश्ते कराते हैं, जिसने भी आपका रिश्ता कराया है उनका आप नेम ले सकते हैं कि उनके थ्रू हम मिले हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू अबाउट, वेट जस्ट फॉर वेट, was it marriage out of love or means they wanna know it was an arranged marriage or love marriage। तो आपको ये बताना है कि एक लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। सो यू कैन गिव आंसर अकॉर्डिंग टू यू। अगर लव है तो आपको यही बोलना है कि यस इट्स अ लव मैरिज, बिकॉज अगर आप उनको सही आंसर देंगे, अगर आप बोल दो कि आपकी मैरिज तो अरेंज है बट यू आर सेइंग नो माई आर मैरिज इज लव, सो उसमें आप फंस जाओगे, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ लेंगे वो कि लव मैरिज थी, कहाँ पे मिले, कैसे मिले। अरेंज मैरिज में कुछ अलग सिचुएशंस होती है, लव में अलग होती है। सो इसलिए वट एवर द केस यू शुड बी ऑनेस्ट, अपना ऑनेस्ट रहो, सीधा आंसर दो, कुछ ज्यादा मीन्स आंसर को बढ़ा चढ़ा कर आपको कुछ नहीं करना है। डोंट डू टू मच शुगर कोटिंग, ओके। And next question they can ask you, when was it that you met your spouse for the first time, कि अपने spouse से कब मिले। फॉर एग्जाम्पल इंगेजमेंट से पहले ही मिलते हैं बेसिकली, जब भी आप उनको मिले आपने उनको बताना है। एंड हाउ डिड यू मीट योर स्पाउस अंडर वट सर्कमस्टांसिस, कि आप कैसे मिले उनसे, मीन्स जैसे किसी ने आपका रिश्ता कराया, आप देखने गए, पहले आपकी मदर फादर ने देखा उनको, फिर आपने देखा। सो वो सारी चीजें आपने बतानी है। किस रेस्टोरेंट में मिले थे, किस होटल में आप मिले थे, पहला फूड आपने कहाँ खाया था, क्या किया था जब आप पहली बार मिले थे। सो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन मैरिज से रिलेटेड पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, हैज योर मैरिज बीन रजिस्टर्ड, कि आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है या नहीं है। सो जब आपके फेरे हो जाते हैं जैसे हिंदू रिचुअल के अकॉर्डिंग या सिख रिचुअल के अकॉर्डिंग, सो आफ्टर दैट यू हैव टू ऑथोराइज योर मैरिज थ्रू कोर्ट। तो आपको कोर्ट से जो अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना ही कराना है। आपकी वैसी फेरे वाली शादी वहां पर नहीं चलती, क्योंकि सरकार जो है, जो एम्बेसीज हैं, ये अथॉरिटीज जो है, ये आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ही मांगती हैं। तो आपको कोर्ट से अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर यू टू गेट मैरिड एंड हु पेड फॉर इट। तो आपने बताया, आपसे वो पूछेंगे कि कितना मैरिज में आपका खर्चा कितना आया, किसने, आपकी फैमिली ने कितना पे करा, उन्होंने कितना करा, डाउरी का क्या प्रोसेस है, डाउरी में आपने क्या क्या दिया उन्हें, ठीक है। आपके हस्बैंड की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या क्वालिटी उनकी अच्छी है, कौन सी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो आप कितनी बारी मिले हो शादी से पहले, कहाँ कहाँ घूमने गए थे, शादी के बाद कहाँ घूमने गए थे, ठीक है। इनके रिलेटिव्स कहाँ पर रहते हैं, तो आपको दूसरे में हर चीज पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, डिड यू गो थ्रू एन इंगेज पीरियड प्रायर टू गेट मैरिड, की मैरिज जैसे एक होता है कि हाँ कि हमारा जो रिलेशनशिप, जो हमारी इंगेजमेंट है 7 मंथ रही, उसके बाद हमारी शादी। एक होता है कि आजकल जैसे हो रहा है कि एकदम से इंगेजमेंट एंड आफ्टर 4 और 3 डेज दोनों जो है उनकी शादी हो जाती है। बट इसमें क्या है कि अगर आपका कोई इंगेजमेंट पीरियड जैसे 7 मंथ रिश्ता रहा, जैसे जन में इंगेजमेंट और अगस्त में शादी हो रही है, तो हाँ कि उसमें बता दो कि हाँ हमारा जो शादी का पीरियड है वो इतना रहा, इतने मंथ हमारी इंगेजमेंट रही, आफ्टर दैट वी गॉट मैरिड, ठीक है। वेयर डिड यू टू गो फॉर योर हनीमून, हनीमून के लिए कहाँ गए थे, हनीमून की पिक्चर्स वो देख सकते हैं। सो आपको पिक्चर्स, जितनी ज्यादा पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं ना अपनी मैरिज की, आपस में इकट्ठी कपल की, अपनी फैमिली के साथ, फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ, जैसे करवा चौथ का फंक्शन हुआ या बर्थडे एनिवर्सरी आई आपके, कुछ भी आया, तो आपको जितने ज्यादा आप अच्छे सबूत रखेंगे उतना ज्यादा आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर होगा, उतना ज्यादा आपके ऊपर उनका ट्रस्ट बनेगा एम्बेसी का, ठीक है, कि ये बंदे जो है जेन्युइन है। तो जितने ज्यादा प्रूफ इकट्ठे कर सकते हैं यू हैव टू कलेक्ट, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट हो, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट हो, फोटोग्राफ्स हैं आपकी, आपकी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस को इतनी फोटो आप दे सकते हो उनको, 2 हनीमून के बाद आपने क्या किया, सब कुछ, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आपकी मैरिज से रिलेटेड वो पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके स्पाउस के बारे में, ठीक है, अबाउट योर स्पाउस। व्हेन इज योर, वही कि आपके स्पाउस का बर्थडे कब है, उनका फुल नेम क्या है, आपके स्पाउस की क्वालिफिकेशन क्या है, डिड योर स्पाउस ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कहाँ से करी है उन्होंने ग्रेजुएशन, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है।
व्हाट इज द हाईएस्ट स्कूल यूनिवर्सिटी डिग्री दैट योर स्पाउस रिसीव्ड, क्या उनको डिग्री मिली है। व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपनी वेयर योर स्पाउस इज एम्प्लॉयड, कि अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो वो कहाँ पर काम करते हैं, उनका सैलरी पैकेज कितना है, कितनी सैलरी वो घर में देते हैं, आप सेविंग कैसे करते हो, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। इन वट सिटी एंड स्टेट डज द एम्प्लॉय ऑफ योर स्पाउस लिव, कि आपका स्पाउस कहाँ पे जॉब करते हैं, अगर आउट ऑफ स्टेट करें तो किस स्टेट में कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है, और मतलब मंथली उनका एक्सपेंस कितना पड़ जाता है, घर पे कितना पैसा देते हैं, सब कुछ। वट इज द लाइन ऑफ वर्क ऑफ योर स्पाउस, वट डू दे डू। सो इसमें आपको बताना है कि उनकी पोजीशन क्या है, कि वो किस तरह की जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर है, टीचर है, एक्सेट्रा। हाउ लॉन्ग हैज योर स्पाउस बीन लिविंग इन दैट स्टेट, अगर वो आपसे अलग रह रहे हैं, मतलब किसी दूसरी सिटी में जॉब कर रहे हैं, किसी दूसरी स्टेट में जॉब कर रहे हैं, तो आपको उनको ये बताना है कि वहां पर वो कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं, शादी के बाद करने लगे हैं, पहले करते थे, वहां पर क्या सिनेरियो है, ठीक है। एंड हाउ मच डज योर स्पाउस अर्न एवरी ईयर, आपको अपने स्पाउस की एनुअल सैलरी पता होनी चाहिए। एंड देन दे कैन आस्क यू कैन यू शो अस द बैंक स्टेटमेंट एंड पे स्टब्स ऑफ योर स्पाउस, मीन्स इसमें वो आपसे अपने आपके बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है कि आपके बैंक में कितनी ट्रांजैक्शन होती है, महीने, 6 मंथ्स की, 3 मंथ, 6 मंथ एक्सेट्रा, कितना पैसा आपके पास है, पीछे प्रॉपर्टी कितनी है, सब कुछ। इज योर स्पाउस अ सिटीजन एंड इफ नॉट हैव दे अप्लाइड फॉर अ ग्रीन कार्ड, तो इसमें आपको बताना है कि क्या वो सिटीजन है, क्या उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करा है। सो ये क्वेश्चंस जो है आपके स्पाउस के बारे में है, ठीक है। So guys, these are some of the dependent questions. There are more questions and that I'm going to tell you in my next video because my health is not good, but today I'm free, so I decided to make the video. Okay, so I think the video is useful for you. Now you have to make the answers according to you, and if you have any doubt then you can comment me freely. I will definitely give you a response. So, and if you like the video, please share it and subscribe my channel, and thank you. Bye.